नमस्कार विद्यार्थी भाईओ ने बहनों, आज आजना वीडियो में आपणे धोरण 9 विषय हिंदी व्याकरण विभाग एमा वर्तनी विषय आपणे माहिती प्राप्त करीशुं। मित्रों, वर्तनी ने उर्दू में हिज्जे कहेवामां आवे छे। अहींया लखेलुं छे आपणे उर्दू में हिज्जे कहेवामां आवे छे अने अंग्रेजी में आपणे एने स्पेलिंग तरीके ओळखीए छीए। जिस शब्द में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। जिस शब्द में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं, शब्द जितना शब्दों में जे शब्दों में जितना वर्ण उपयोग में लेवामां आवे छे एने ए ज क्रम में लखवू, जेने आपणे वर्तनी तरीके ओळखीए छीए। अहींया वर्तनी संबंधी आपणे કેટલીક माहिती प्राप्त करवानी छे। लखता समय अने बोलता समय के आपणे ज्यारे मनन करता होईए त्यारे मनन करते समय वर्तनी दोष चौक्कस रूप में एना दोष दूर थशे। तो वर्णों की लिखावट में सावधानी, वर्णनी लखावट में लखाण में शुं सावधानी आपणे राखवानी छे ए जोईए। तो अहींया लख्युं छे ख। ख को र की तरह न लिखिए। अहींया ख छे मित्रों, र अने व, र ए व ની સાથે જોઈન કરવામાં આવે છે, અડાડવામાં આવે છે। જ્યારે र व શબ્દમાં र અને व બંને અલગ છે। તો ખ અને र આ બંને આપણે લખતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે र ની જગ્યાએ ખ ના થઈ જાય અને ખ ની જગ્યાએ र ના થઈ જાય। જો એનાથી શું થાય તો ખ એની જગ્યાએ र બની જાય તો र અને व अलग છે। तो र અને व એ વર્ણથી એક નવો શબ્દ બની જાય છે, मतलब एक शब्द बने छे अने र नो अर्थ थाय छे दाणा। એટલે એને આપણે કહીએ કે દાણેદાર, એટલે કે રવાદાર। र અને ख માં આ જે ભેદ છે એ આપણે લખતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે જેથી આપણને ભૂલ ન થાય। ધજા, મિત્રો ધજા લખીએ છીએ આપણે, બરાબર। ધજા લખતી સમયે ધ ઉપર ની જે શિરોરેખા છે એ પૂરી લખવામાં આવે છે। तो ध पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय जो व्यंजन होते हैं घ का पूर्व का गोल वाला जो सिरा होता है मुड़ा हुआ होता है घ। अहींया આપણે જોઈએ છીએ કે ઘ કેવી રીતે લખાય। ઉપરનો જે ભાગ છે એને ગોળ વાળવામાં આવે છે અને આ જે શિરોરેખા અને વળેલા ભાગની વચ્ચે જગ્યા રાખવામાં આવે છે। तो इसे भी रिक्त स्थान रहता है। उसी तरह थ, જ્યારે थ લખવામાં આવે ત્યારે પણ એવું છે, મોડેલો ભાગ અને શિરોરેખા બંને વચ્ચે અંતર છે। भ
બમાં પણ એ પ્રમાણે છે। જો બની ઉપર આપણે સીધો રેખાવાળા ભાગને આમ લીટીયા દળી દઈએ તો આપણને ત્યાં ભ્રમ ઉભો થાય છે। આ શબ્દ અક્ષર ભ છે કે મ છે એમાં આપણને તકલીફ ઉભી થાય છે। તો એક ભ્રમ એનાથી પેદા થાય છે। કેટલાક સંયુક્ત અક્ષરો છે। દ વત્તા વ, દ વત્તા દ બરાબર દ, તદ્દન, રાજગદ્દી, દ વત્તા મ દમ, તો પદ્મ, છદ્મ, દ વત્તા ધ યુદ્ધ, કે આ સંયુક્ત અક્ષરો છે। દ અને ધ જોડેલા છે। શ્રવણ, શ વત્તા ર બરાબર શ્ર, રાષ્ટ્ર, ટ વત્તા ર કોલોટ આવશે તો થશે ટ્ર, રાષ્ટ્ર, ટ્રક, અનુસ્વાર બિંદુ અને ચંદ્ર બિંદુ એમાં ક્યારે આપણે અનુસ્વાર અને ક્યારે ચંદ્ર બિંદુ મૂકવાનું છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। પૂર્ણ અનુસ્વાર અને અર્ધ અનુસ્વાર, અર્ધ અનુસ્વારને આપણે શું કહીએ છીએ? ચંદ્રબિંદુ। અહીંયા અંત આ પૂર્ણચંદ્ર તો આપણે અનુસર કર્યું છે। જ્યારે અંતની રીતે આપણે અહીંયા આંત કરીએ આંત તો અહીંયા આખો શબ્દનો જે અર્થ છે એ અર્થ અહીંયા બદલાઈ જાય છે। ગંધ એક શબ્દ છે ગંધ, અને અહીંયા ગાંવ, તંતુ અને તાંત, તાંત, દંભ અને દાંત, દાંત, આ બધા ઉદાહરણમાં અંત, દંભ, પંચ ઇત્યાદિ જ્યાં પૂર્ણ અનુસ્વાર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આંત, દાંત, પાંચ આ બધા શબ્દો છે ત્યાં ચંદ્રબિંદુ એટલે કે અર્ધ અનુસ્વારનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે। પૂર્ણ અનુસ્વાર અંગ, ગ, ન, म, अनुनासिक पंचम वर्ण की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। क, ख, ग, थ वगैरह ની સાથે અંગ, ંગ,
ચ છ અને જ સાથે જ ટ ઠ ડ ઢ એ બધાની સાથે અણ સંયુક્ત વર્ણના રૂપમાં उपयोग કરવામાં આવે છે, प्रयुक्त होता है। पूर्ण अनुसार બે રીતે લખવામાં આવે છે। शंकर वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ, शंकर બે રીતે લખી શકાય છે। જોઈએ આપણે કઈ રીતે। अंतिम अनुनासिक वर्गની સાથે આ રીતે શંકર આપણે લખી શકીએ છીએ। જ્યારે અનુસ્વારનું ચિહ્ન મૂકવામાં આવે તો શંકર, આ રીતે પણ આપણે શંકર લખી શકીએ છીએ। અંજન अंजन घंटा आ प्रमाणे पण लखी शकाय छे। अनुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। જ્યારે પૂર્ણ અનુસ્વાર એના કરતા એ આગળ कोमल અને हल्को હોય છે। इस पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं। मानो कि अंत है यहाँ पर, इस अंत को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और आंख को आंख नहीं लिख सकते। आंख को यहां पर है आंख, आंख ये गलत हो जाएगा। यहां पर अंक को अंत इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं शिरोरेखा पर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः जो अनुस्वार होते हैं तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मैं, इसमें शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार है और कहां तो कहां मां नीचे अनुस्वार से गांधी, आंधी, आंखन, जांग, नाग, कांख, ये सभी जो शब्द हैं उसमें शिरोरेखा के नीचे लिखा जाता है। यदि किसी शब्द में स हो और स के उससे पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलता। जैसे 10, पास, घास, विश्वास, इतिहास, ये सारे उदाहरण या स से पहले आ आता है। ह वर्ग के पूर्व में श का प्रयोग होता है। जैसे क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट,
कष्ट। रू के बाद श का जब प्रयोग होता है तो ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आगे चौथे वर्ग पर रहने से श का प्रयोग होता है, जैसे निश्चित, निश्चय। क, ख, ग, ज और फ का प्रयोग कत्ल, खबर, गरीब, जमाना, फकीर, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इन उदाहरणों को ध्यान से देखें तो क, ख, ग, ज और फ कत्ल, कदम, कद्र, कलम, काबिल, खुदा, खुश, गुस्सा, गाफिल, जमीन, जहर, फरेब, फुर्सत, इन सब में क, ख, ग, ज और फ के बगल में नुक्ता या बिंदी लगाई गई है। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। कलम, यहां पर उदाहरण लिखते हैं कलम, तो ये बिंदी इसलिए लगाई जाती है कि उसका उच्चारण सही हो सके। ऐसे ही शब्द हैं काबिल, खुश, खुदा इत्यादि। ई और ई की बुलें इस और इस, किस और किस, दोनों में यहां फर्क मालूम पड़ता है हमें। इसी प्रकार से चीज और चीज, नारी और नारी, दोनों शब्दों में अंतर यहां पर है। ऊ की जगह ऊ की जो गलती होती है, तूने दीर्घ है और तूने, तूने और तूने, इसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द है, लिखने में गलतियां होती हैं। ये सब ऊ की जगह ऊ की भी गलती होती है, जैसे कि तुम रस्व है और शुद्ध में क्या होगा, दीर्घ आएगा जो शुद्ध होता है। कुत्ता और कुत्ता, तो कुत्ता सही है, लेकिन इस तरह हम कुत्ता लिखते हैं तो ये गलत है। इस प्रकार से कुत्ता शब्द ये सही है। ये दोनों मानो कि यहाँ पर प्रत्यय संबंधी कुछ बोले हैं, अशुद्ध और वाक्य में उत्कर्षता, इसमें उत्कर्ष की जगह हम उत्कर्ष शब्द लिख सकते हैं। गौरवंतम ऐसा नहीं लिखा जाता, उसमें गौरव लिखा जाता है। हलंत का प्रयोग मान, वान, हन, प्रत्यय शब्दों के हलंत का प्रयोग होना अवश्य चाहिए। श्रीमान न के बाद न के नीचे लिखा जाता है आयुष्मान, આયુષ્યમાન, અહીંયા નો ઓળો લખવામાં આવે છે। दुकान, स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, विद्युत आदि। मित्रों અહીંયા દરેકના આપણે ઉદાહરણ જોયા છે। ભાગ 1 માં આપણે આ વર્ગની અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। તમે પાન નંબર 53, 54, 55, 56 ને 57 पर જે શબ્દો લખેલા છે એ તમારી નોટમાં એમાં ઉતારેલા છે।